سب سے پہلے اب تک کی اہم ترین خبر میر رضا کیس میں ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے اور وہ یہ کہ میر رضا کے جسم کو تیزاب سے جلانے کی بھی کوشش کی گئی تھی۔ میر رضا کیس کے معاملے پر بات کریں گے، سینئر اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شاہزیب، میر رضا کیس میں اب یہ جو انکشاف سامنے آیا ہے کہ جسم کو تیزاب سے جلانے کی بھی کوشش کی گئی۔ جی بالکل، اور یہ بڑا اہم انکشاف سامنے آیا ہے۔ ہم آپ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ 29 تاریخ کو پہلا پوسٹ مارٹم ہوا تھا میر رضا کا، اور اس پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی شرٹ بھیجی گئی تھی فورنسک لیب میں یہ بات جانچنے کے لیے کہ اور کیا حقائق سامنے آ سکتے ہیں۔ اور جب ہم اس معاملے پر تحقیق کر رہے تھے تو ہمارے سامنے تصاویر آئی تھیں میر رضا کی، اس میں نظر آ رہا تھا کہ ان کا جو چہرہ ہے اس کی زیادہ ڈیکمپوزیشن ہوئی ہے بنسبت ان کے باقی جسم کے، یعنی کہ چہرہ اتنا ڈیکمپوز ہو گیا تھا کہ اس کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ تو پھر پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ صاحبہ ہمارے پروگرام میں آئی اور ہم نے ان کے آگے یہ سوال رکھا تو انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ یہ ٹپیکل انہیں ایک ڈیکمپوزیشن نظر آتی ہے جس میں چہرہ بہت زیادہ ڈیکمپوز ہو گیا ہے اور باقی جسم جو ہے وہ اتنا ڈیکمپوز نہیں ہوا ہے۔ چہرہ اتنا ڈیکمپوز ہو گیا تھا میر رضا کا کہ پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا اور بہت زیادہ اس پر ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ الگ بات نظر آتی ہے، جس کو کنفرم کیا تھا اس وقت ڈاکٹر سمیہ نے کہ یہ ٹپیکل ہے۔ اب جو حقائق سامنے آ رہے ہیں، ہمیں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، یہ رپورٹ بھی سامنے آ جائے گی، فورنسک لیب میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ میر رضا کی شرٹ پر ہائیڈرو کلورک ایسڈ یعنی تیزاب کے ثابت ہوا ہے کہ اس کے اوپر پھینکا گیا تھا، یعنی کہ اس کے چہرے پر بھی تیزاب پھینکا گیا اور اس کے ہاتھ، کیونکہ اس کا بائیو میٹرک بھی نہیں ہو سکا تھا تو اس کے ہاتھ پر بھی تیزاب پھینکا گیا تھا تاکہ اس کی شناخت مٹائی جا سکے، نہ اسے شکل سے پہچانا جا سکے نہ ہی ہاتھوں سے بائیو میٹرک کر کے اسے پہچانا جا سکے۔ جو فورنسک لیب کے ذرائع اب اس وقت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو شرٹ بھیجی گئی تھی 29 تاریخ کو پہلے پوسٹ مارٹم کے بعد، اس شرٹ سے ہائیڈرو کلورک ایسڈ یعنی ایک تیزاب کے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پھینکا گیا تھا، اس کی شناخت مٹانے کے لیے، لاش کی شناخت مٹانے کے لیے، تاکہ اتنی مسخ ہو جائے لاش یا اس کی شناخت کہ پہچانی نہ جا سکے۔ چہرہ بہت زیادہ مسخ نظر آ رہا تھا ان تصاویر میں جو ہمارے سامنے آئی تھیں، اس کے علاوہ اس کا بائیو میٹرک بھی نہیں ہو سکا تھا، مگر ظاہر ہے بعد میں یہ پتا چل گیا، والدین نے بھی پہچان لیا اور کپڑوں سے پہچانا، یہ بات بھی سامنے آئی تھی۔ اور یہ بات ہم نے ڈاکٹر سمیہ صاحبہ کے سامنے رکھی تھی کہ اگر 24 گھنٹے 30 گھنٹے پرانی لاش ہو تو کیا وہ اتنی زیادہ ڈیکمپوز ہوتی ہے اور کیا اس میں چہرہ اتنا زیادہ مسخ ہو جاتا ہے کہ اسے پہچاننے میں مشکل آ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ایٹیپیکل ڈیکمپوزیشن کا کیس ہے یہ، اور اب یہ حقائق سامنے آ رہے ہیں جو ہمیں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ فورنسک لیب کی رپورٹ میں تیزاب پھینکنے کی شواہد سامنے آئے ہیں اس شرٹ سے، جو شرٹ فورنسک لیب بھیجی گئی تھی۔ اس شرٹ میں یہ بھی یاد رہے کہ ڈاکٹر سمیہ سید صاحبہ نے ہمارے پروگرام میں یہ سوال بھی اٹھایا تھا اور بتایا تھا انفیکٹ کہ اس شرٹ کے جو فائبر تھے وہ باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے سینے سے، اگر سینے سے گولی ماری ہوتی تو ٹپیکلی اندر کی طرف ہونے چاہیے تھے۔ اور بعد میں جو انہوں نے 14 سوال اٹھائے تھے، 14 نکات اٹھائے تھے، اس کے بھی سارے کے سارے جواب مل گئے کہ وہ سارے نکات ٹھیک تھے۔ شاہزیب، آپ نے بڑے مؤثر انداز میں اس ایشو کو کور کیا ہے، مختلف شخصیات سے بات کی ہے، ایکسپرٹ سے آپ کی بات ہوئی ہے، انٹرویوز کیے ہیں آپ نے مختلف۔ اب یہ جو آپ انکشاف سامنے لے کر آئے ہیں کہ میر رضا کے اوپر ہائیڈرو کلورک ایسڈ پھینکا گیا تھا، ڈاکٹر سمیہ سے بھی آپ کی بات ہوئی اور آپ نے اپنے شو میں یہ بات کی تھی کہ ایک موسم کا، ہیومیڈیٹی کا بھی فیکٹر تھا جس کی وجہ سے ڈیکمپوزیشن کا عمل زیادہ جلدی ہو گیا۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیکمپوزیشن ان دونوں فیکٹرز کی وجہ سے زیادہ تیزی سے ہوئی۔ دیکھیے، جو ظاہر جو پولیس ہے وہ ذرائع یہی بتا رہے تھے کہ ڈیکمپوزیشن موسم کی وجہ سے زیادہ ہوئی ہے، اور موسم کا جو عنصر ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھی، مگر وہ یہ ضرور کہہ رہی تھی کہ یہ ایٹیپیکل ہے جس میں مختلف عناصر شامل ہو سکتے ہیں، مگر یہ بات بار بار سامنے آ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی جسم جو ہے اس میں وہ اتنا مسخ نہیں ہے اس کا، مگر گلنا سڑنا آپ کو چہرے پر نظر آ رہا ہے اور اس حد تک نظر آ رہا ہے، اس حد تک آنکھیں باہر آ چکی ہیں کہ چہرہ پہچاننے میں نہیں آ رہا ہے۔ والدین کو ایک 30 گھنٹے پرانی لاش کو پہچاننے کے لیے اسے کپڑوں سے پہچاننا پڑا تھا۔ تو اب جو حقائق سامنے آ رہے ہیں اور یہ رپورٹ سامنے آ جائے گی، ابھی ہمارے ذرائع سے ہمیں یہ انفارمیشن مل رہی ہے کہ اصل میں چہرے پر ہائیڈرو کلورک ایسڈ ڈالا گیا تھا اور ہاتھ پہ بھی اس کے عنصر نظر آئے ہیں تاکہ ہر طریقے سے میر رضا کی جو شناخت ہے اس کو مٹا دیا جائے اور پہچاننے میں نہ آئے کہ اصل میں یہ ڈیڈ باڈی کس کی ہے۔ پہلے ہی ظاہر اس کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی، یہ کہا گیا کہ سینے پر گولی لگی ہے۔ جب ہم نے سوال رکھا ڈاکٹر سمیہ صاحبہ کے سامنے
सामने के सीने पर लगी है, तो क्या वजह है कि सीने पर निशान बड़ा है और कमर पर छोटा है। आमतौर पर जहां से गोली निकलती है वहां निशान बड़ा होता है, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी। और ये भी बताया, हम बाद में हकाइक सामने आया कि वो 4 अगस्त को हमारे प्रोग्राम में आई थी। 3 अगस्त को वो एक खत के जरिए पुलिस को बार बार ये बता रही थी और याद दहानी करा रही थी कि ये 14 सवाल पैदा होते हैं। अब ये बात सामने आ रही है कि असल में वो जो चेहरे का गलना सड़ना था, जो चेहरे की डिकम्पोजिशन थी, वो तेजाब की वजह से थी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया था, हाथों पर भी डाला गया था, जिसकी वजह से ताकि बायोमेट्रिक तस्दीक हो, ना ही उसके चेहरे की शनाख्त हो और लाश की शनाख्त ही ना हो सके, और एक लावारिस लाश के तौर पर उसको देखा जाए, यानी कि मर्डर का ट्रेस ना हो सके और उसको एक खुदकुशी का रंग दे दिया जाए। सही। और शाहजेब, ये तमाम तर जो आप तफसील शेयर करें, साथ ही साथ सिंध हुकूमत ने मीर रजा के केस पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया, और आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया, जो आपके प्रोग्राम में भी आई थी, उनकी वजह से सिंध हुकूमत की बदनामी हुई। उन्हें चाहिए था कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खामियां थी तो मीडिया पर जाने के बजाय सिंध हुकूमत को आगाह करती। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, सिंध हुकूमत की बदनामी हुई है सिंध हुकूमत के अपने किरदार की वजह से। सिंध पुलिस की बदनामी हुई है सिंध पुलिस की अपनी हरकतों की वजह से। ये डॉक्टर सुमैया सैयद ने कैसे बदनामी कर दी है, वो हमारे प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने जब बात की कि डॉक्टर सुमैया को खुद बताना चाहिए था, तो हमने उन्हें बताया था कि डॉक्टर सुमैया 4 अगस्त को हमारे प्रोग्राम में आई हैं। 3 अगस्त को उन्होंने खत लिखकर 14 निकात उठाए हैं, मगर किसी ने उन निकात के ऊपर को अहमियत नहीं दी। हमने जब पुलिस से बात की तो पुलिस ने हमें कन्विंस करने की कोशिश की कि यह हर तरीके से एक खुदकुशी का केस है। और यह बात वाज़े हो कि हमारी पुलिस हुक्काम से बात हो रही थी 4 अगस्त को, जिस दिन डॉक्टर सुमैया सैयद हमारे प्रोग्राम में आई हैं। डॉक्टर सुमैया सैयद खत लिख चुकी हैं 3 अगस्त को। उस खत में उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं मुख्तलिफ से हुक्काम से रुजू कर रही हूं। वो एक बड़े हुक्काम को बता चुकी हैं। तो 3 अगस्त को एक डॉक्टर 14 निकात के साथ और अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ और अपने ही डिपार्टमेंट की गलती को तस्लीम करते हुए आपको बता रही हैं, मगर आप उसको उसके बावजूद खुदकुशी का बयानिया पुश किए जा रहे हैं। तो सिंध हुकूमत बदनाम हुई है अपनी हरकतों की वजह से। और फिर एक मेडिकल बोर्ड बनता है, वालदैन को जाना पड़ता है अदालत में। जब वालदैन अदालत में जाते हैं और अदालत कहती है कि बोर्ड बना दो, तो क्या डॉक्टर सुमैया सैयद ने वो बोर्ड बदल दिया था, जो कि 8 रुकनी बोर्ड था, जो कि अदालत के हुक्म पर डॉक्टर सुमैया सैयद ने बनाया था? सिंध हुकूमत ने बदला था, हेल्थ सेक्रेटरी ने बदला था। तो इन हरकतों की वजह से बदनाम हुए हैं, एक डॉक्टर के पीछे पड़ गए हैं जिसने सच लाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया है अवाम के सामने। बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शाहजेब खानज़ादा साहब, जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कराची में जलसे से खिताब कर रहे हैं। बगैर उसकी परवाह किए बगैर पाकिस्तान को बचाना पड़ेगा। आज अल्लाह का शुक्र है, मुल्क में वो वक्त आ गया है, मुल्क में वो दौर आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम कोई लिसानी बात नहीं कर रहे, हम कोई लिसानी बुनियादों पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात नहीं कर रहे। आज पाकिस्तान 26 करोड़ की आबादी हो गया है, और जब पाकिस्तान बना था 1991 के सेंसस के मुताबिक 3 करोड़ 70 लाख की आबादी थी, तो 4 सूबे थे। 2023 के सेंसस के मुताबिक 24.5 करोड़ आबादी, और आज 2026 अगस्त का महीना 26.5 करोड़ आबादी हो गई है। आज भी वही 4 सूबे हैं। दुनिया इन 80 सालों में अमेरिका के 50 सूबे हैं, चाइना के 31 सूबे हैं, इंडिया के 36 सूबे हैं, इंडोनेशिया के 34 सूबे हैं, नाइजीरिया जैसे मुल्क के 27 सूबे हैं, ब्राजील जैसे मुल्क के 36 सूबे हैं, रशिया के 77 सूबे हैं, और मैक्सिको के 31 सूबे हैं। अफगानिस्तान जो कि 4.5 करोड़ लोगों का मुल्क है, 34 सूबे हैं। श्रीलंका जो कि 2 करोड़ लोगों का मुल्क है, 9 सूबे हैं। और आज पाकिस्तान वही 4 के 4 सूबे हैं। जब पाकिस्तान बना था तो 4 करोड़ की आबादी थी, आज 7 गुना आबादी बढ़ गई है, वही 4 सूबे हैं। वजह वही है जो मैंने पहले बताई कि हमारे आबा व अजदाद ने अंग्रेजों से आजादी हासिल कर ली, लेकिन ये मुल्क
अंग्रेजों के कुत्ते धुलाने वालों के हाथों में चला गया और हमें यरगमाल कर लिया। हमें हकीकी आजादी चाहिए, अपने गली मोहल्ले में, अपनी गली मोहल्लों में आजादी चाहिए। हमें अपनी गली मोहल्लों में आजादी चाहिए, हमें अपनी गली मोहल्लों में इख्तियारात और वसाइल चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इसलिए चाहिए। और आज पाकिस्तान का पंजाब 172 मुल्कों से बड़ा सूबा है। आज पाकिस्तान का सूबा सिंध 162 मुल्कों से बड़ा सूबा है। आज पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा 152 मुल्कों से बड़ा सूबा है। आज पाकिस्तान का बलोचिस्तान रकबे के हवाले से 182 मुल्कों से बड़ा सूबा है। कोई दुनिया में मिसाल नहीं है, इस ओवर सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ मैनेजमेंट की कोई मिसाल नहीं है। आज 80 सालों के बाद पाकिस्तान में 2,60,00,000 बच्चे जिनकी उम्र स्कूलों में जाने की है, स्कूल से बाहर हैं। लार्जेस्ट नंबर इन द वर्ल्ड आउट ऑफ स्कूल बच्चों में, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के मुमालिक में एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल कराची में जलसा से खिताब करें। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा है कि मक्का मुआहिदा तीनों मुल्कों के क़यादत और अवाम के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की गहराई का आगाज़ है, जो कई बरसों से जारी मुशावरत और बाहमी राबताकारी का नतीजा है। मुआहिदे का मकसद अमन और सलामती के चैलेंजेस से निमटने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाना, खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देना है। मक्का मुआहिदा पहले से मौजूद किसी भी मुआहिदे को मनसूख या तब्दील नहीं करता, जो चाहे बाहमी हों या दीगर ममालिक और तंजीमों के साथ हों। तीनों ममालिक में से किसी एक पर बैरूनी हमला तीनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये उसूल यूएन मंशूर के आर्टिकल 51 के तहत इनफरादी इज्तिमाई दिफा के फितरी हक से हम आहंग है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने समाजी मीडिया पर जारी करदा बयान में कहा कि गुज़श्ता 2 रोज़ से मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के हवाले से बहस जारी है। मक्का मुआहिदा हमारी ख़ारिजा पॉलिसी के बुनियादी सुतूनों से हम आहंग है। मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का हामिल है। मुआहिदे का मकसद किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं, मुआहिदे का मकसद खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली के लिए जारी कोशिशों को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान खित्ते के तमाम बरादर ममालिक के साथ पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने का ख्वाह है। तनाज़ात के पुरअमन हल अपनी आवाम के लिए ज़्यादा महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल के आज़म पर कायम है। मक्का मुआहिदा खित्ते के हर उस मुल्क के लिए खुला है जो उसके बुनियादी उसूलों की पासदारी के साथ बाहमी एहतराम, ताउन और पुरअमन तरीके से इख्तिलाफात हल करने को तैयार हो। तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा खाकान फ़िदान ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का दिफाई मुआहिदा नेटो मुआहिदे की तरह है। नेटो की शिक 5 की तरह मक्का मुआहिदे में भी एक दूसरे के दिफा की ज़मानत दी गई है। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इस मुआहिदे का हदफ ईरान नहीं। उन्होंने कहा कि नेटो की तरह तीनों मुल्क एक वज़ारती कमेटी बनाएंगे। उसका सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में होगा। मुआहिदे में कुछ तकनीकी मामलात हल हो जाएं तो मिस्र भी इसका हिस्सा बन सकता है। अभी आपको बताएंगे ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की एक वीडियो मंजर आम पर आई है। ईरानी खबर एजेंसी ने मुश्तबा खामनाई की वीडियो जारी की। वीडियो में सेहतमंद हालत में मुश्तबा खामनाई कई अफराद के साथ बैठकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरानी खबर एजेंसी ने मुश्तबा खामनाई की वीडियो रिकॉर्डिंग का मकाम और वक्त नहीं बताया, ना ही साथ मौजूद लोगों की तफसीलात बताई। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी हैं। 15 खवारिज हलाक कर दिए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्तोंग, बोलान, वाशुक, अवरान, सिब्बी, खुजदार, हरनाई और नोशकी में खवारिज के खिलाफ मुताद्दिद कार्रवाइयाँ की। कार्रवाइयों के नतीजे में 15 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए, जबकि खवारिज के कब्जे से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के बायस खवारिज के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचा और उनकी नकलो हरकत महदूद कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत अपनी कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कराची में मीर रज़ा केस की तहकीकात के लिए बनाई गई नई 5 रुकनी कमेटी का पहला इजलास कल तलब कर लिया गया है। इजलास में अब तक होने वाली तहकीकात का जायजा लेने के साथ केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर मजीद तहकीकात का आगाज किया जाएगा। मीर रज़ा केस की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास कल तलब कर लिया गया। इजलास DIG क्राइम ब्रांच के दफ्तर में दोपहर 12 बजे होगा। तमाम मेंबरान को इजलास में शिरकत की हिदायत कर दी गई है। IG सिंध की हिदायत पर पहली तहकीकाती कमेटी खत्म करके नई 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद नई कमेटी तश्कील दी गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में मीर रज़ा केस में अब तक होने वाली तहकीकात, शवाहिद और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा। नई तहकीकाती कमेटी केस के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात आगे बढ़ाएगी और दस्तयाब शवाहिद की रोशनी में मजीद कार्रवाई का तयन किया जाएगा। लाहौर के इलाके मनावा से मुबैना अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस के मुताबिक मगवी ने खुद ही अगवा का ड्रामा रचाया। शहरी के गुज़िश्ता रोज़ रस्सी में बंधे हुए
वीडियो सामने आई थी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने मुबैना अगवा की वीडियो अपनी अहलिया को भिजवाई थी। मजीद बात करेंगे इस बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियां आबिद से। मियां आबिद, बताइएगा क्या मामला है ये, क्यों इस शख्स ने ऐसे किया? जी, ये एक बेरोजगार नौजवान था, तैमूर इसका नाम था। ये लाहौर का इलाका है काना, वहाँ का ये रहने वाला था और अपने ससुरालियों से पैसे मांगता रहा था पहले भी। और उसके बाद उसने कहा जी कि ये पैसे देंगे तो मैं कोई कारोबार करूंगा। उसके लिए उसने फिर ड्रामा किया, क्योंकि ससुराल वाले अब उसको मजीद पैसे नहीं दे रहे थे। तो अपने दोस्त के पास एक फैसलाबाद पहुंचा और वहां से उसने अपने हाथ जो है वो कमर के पीछे बंधवाए उनसे रस्सियों से, और गालम गलोच की वीडियोस बनवाई और ऑडियो मैसेज जो है कि 15 लाख रुपए जो है वो मुझे दिए जाएं अगवाकारों की तरफ से, वरना इनको जान से मार दिया जाएगा। तो उसकी बीवी बेचारी जो थी वो थाने पहुंची, उनको वीडियोस दी और ऑडियोस दी कि जी मेरा खामन जो है वो अगवा हो गया। तो पुलिस ने जब उन ऑडियो वीडियोस का तज्जिया किया तो उसमें नजर आ गया कि ये सब झूठ पर मबनी एक ड्रामा है। तो उन्होंने जो जिस नंबर से ऑडियो वीडियोस उसकी बीवी को भेजी गई थी उसकी लोकेशन ट्रेस की और वहां से पता चला कि ये तो फैसलाबाद में मौजूद है। फिर पुलिस टीम यहाँ से रवाना हुई और एक ही दिन में इस मसले को हल कर दिया। जी ठीक है, शुक्रिया आपका मियां आबिद इस तफसील के लिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि शोशे छोड़ने से मसाइल हल नहीं होते, मसाइल के हल के लिए मिल बैठ कर काम करने और पार्लियामान में आईनी तरीक़ाकार इख्तियार करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान से बढ़कर हम सब के लिए कुछ नहीं। उनका कहना था कि बारिशों के बाद शहर की सड़कों पर काम का आगाज़ हो। बल्दिया उज़्मा कराची शहर की तकरीबन 155 नई सड़कों के ऊपर काम स्टार्ट कर रही है, जिनमें से 26 सड़कों पर काम स्टार्ट कर दिया है और मज़ीद 138 सड़कों के ऊपर अखबार में टेंडर हमने भेज दिया है ताकि टेंडर के बाद उस काम को मुकम्मल किया जा सके। जैसे ये बारिशों का सीज़न ख़त्म होता है, जो रोड कारपेटिंग का काम है, सड़क की मुरम्मत का काम है, रिकन्स्ट्रक्शन का काम है, उसका भी आगाज़ कर दिया जाएगा। और टारगेट यही है कि इसी साल में उस काम को मुकम्मल करेंगे ताकि एक आम कराची वाले को जो उसका फ़ायदा है वो फ़ायदा मिल सके। निज़ाम ठीक होता है, निज़ाम को चलाने वाले अगर ठीक नहीं है ना तो जितना भी अच्छा आप निज़ाम बना लें वो नहीं चल सकता। वही निज़ाम है, आज एमकेएम की सोच नहीं है, आज पीपल्स पार्टी की सोच है, आज बिलावल साहब की सोच है। तो आपको वो चीज़ें जो बंद थी वो खुलते हुए नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें ख़राब थी वो बेहतर होते हुए नजर आ रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। मुआहदे में ईरान को भी शामिल करने की कोशिश की जाए। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मक्का दिफाई मुआहदा आलम इस्लाम के लिए अहम पेशरफ्त है। कोशिश करें कि ईरान समेत दीगर ममालिक भी इस मुआहदे में शामिल हों। मक्का दिफाई मुआहदे के जरिए एक ताकतवर नेटवर्क बनाना चाहिए। सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की चेयरपर्सन फरियाल तालपुर ने मीर रजा केस का नोटिस लेते हुए वज़ीर आला सिंध को वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की सिफारिश की है। एलामिया के मुताबिक सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की चेयरपर्सन फरियाल तालपुर ने मीर रजा केस का नोटिस लेकर वज़ीर आला सिंध को वाक़े की शफाफ गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की सिफारिश की है। फरियाल तालपुर का कहना था कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में ज़िम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ तादीबी कार्रवाई की जाए। मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। वाक़े से मुतालिक तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएं।